Hello students, this is our fifth chapter, Origin and Evolution of Life. In the previous video, we were studying about mechanism. We have studied several mechanism and in that mechanism हम लोग ने types of natural selection पढ़े थे. फर्स्ट पढ़े थे उसमें stabilizing selection, second was directional selection, third disruptive natural selection पढ़े थे. Then उसके बाद we have studied one principle that was Hardy-Weinberg's principle. उसमें हम लोग ने P plus Q equals to 1 के बारे में पढ़े थे. Then we have studied adaptive radiations. In this video, after mechanism, we will study about evidence of organic evolution. What is evidence of organic evolution? This is our today's topic. We will study this evidence, मतलब what are the proof that organic evolution सच में हुआ है. इस बात का proof क्या है? So there are several proofs, there are several evidence which shows us that is true. This organic evolution is true and it happens. That the theory of organic evolution states that the present day complex organism have originated from earlier simpler form of life. जो आज हमारे पास complex organisms है, okay? Today what we having complex organism. ये complex organism originate हुए हैं फ्रॉम अर्लियर सिंपलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ. पहले के सिंपल फॉर्म्स ऑफ लाइफ से ओरिजिनेट हुए. द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ये जो प्रोसेस है इवोल्यूशन का, इट इज़ सपोर्टेड बाय एविडेंसेस. एविडेंसेस मीन्स सम प्रूफ प्रोवाइडेड बाय वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. अब वेरियस ब्रांचेस कौन कौन से? पैलेंटोलॉजी. पैलेंटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एशियंट फॉसिल्स. कंपैरेटिव एनाटॉमी. पैलेंटोलॉजी इज स्टडी ऑफ एशियंट लाइफ ऑफ फॉसिल्स. देन कंपैरेटिव एनाटॉमी, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की एनाटॉमी का डिफरेंस होता है. We study anatomy. Anatomy is external appearance, its function, its mechanism. Anatomy includes everything. Then embryology. Embryology means study of an embryo. It's called as embryology. Then it is molecular biology. Studying about molecules. Molecules के बारे में study को बोलते हैं molecular biology. Then firstly, next part में we are going to study everything one by one. The main thing जो अभी तक new है हमारे लिए right now is paleontology. We haven't studied about this term in the previous chapters. So first we will study about paleontology. What is paleontology? The study of ancient life with help of fossils. Study of ancient life. Ancient life means life of people which are living in ancient times में, पुराने टाइम में जो लोग थे उनके ऊपर स्टडी करना with the help of fossils. With the help of fossils is called paleontology. Okay? Study of ancient life. Study of ancient life with help of fossils. With help of fossil is called paleontology. Fossils क्या है? Fossils are the dead remains of plants and animals. मरने के बाद जो remain हो जा रहा है, जैसे कि बोन्स. बोन्स रिमेन होते, बोन्स डिकम्पोज नहीं हो रहे. दो जो डेड रिमेन है, ये जो
डेड रिमेन हो रहे हैं आफ्टर डाइंग of anything, of maybe plants or animals that lived in past in various geological layers, then the study of fossil provides this study of fossil provides the most convincing and direct evidence of evolution. This study of fossil is the proof that yes, that organism do exist, and it is the evidence material. It is a direct evidence and convincing that someone अगर आँखों से देखा जा रहे fossils को, then it is a direct proof that yes, evolution हुआ है, right? Then fossils are formed in sedimentary rocks. Umber is yellowish fossil resin, ice, peat, bogs, etc. ये सारे से एक फॉसिल बनता है. Fossils are formed in sedimentary rocks, umber, ice, pit, bogs, etc. Then, what is pit and bog? पिट बॉग क्या है? पिट इज समथिंग, खड्डे को बोलते हैं पिट. बॉग जो वेट लैंड होते हैं वो है बॉग. तो पिट बॉग मतलब जो वेट लैंड है, जिसमें खड्डा है, जिसमें होल है, वहाँ पे फॉसिल्स फॉर्म होते हैं. दे हेल्प टू फॉर्म फॉसिल्स. एंड ड्यूरिंग फॉसिलाइजेशन, मतलब ये फॉसिलाइजेशन के प्रोसेस में जो प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई द ओल्डर, लोअर लेयर एंड द एडवांस्ड फॉर्म ऑक्यूपाई द अपर, more recent layers of the earth. Again, during fossilization के प्रोसेस में this primitive forms, the primitive जो है वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? primitive forms of organism occupy the older, और जो lower layer है and advanced form है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहे हैं? upper, ऊपर का पार्ट. more recent layers of the earth. Then types of fossils. There are many types जिसमें fossils divide हुआ है. Actual remains. There are common type of fossils. First type है हमारा actual remains. Actual remains क्या है? These are the most common types of fossil. Plants, animals and human bodies got embedded in permafrost of Arctic or alpine snow remain preserved in the actual state. For example, woolly mammoth in Siberia. Umber or hardened resin contains preserved bodies of many insects and arthropods. Most common type कौन सा है? Actual remains, जो actually human body से remain हुआ है after it's dead. Okay, not only human, we can also say plants and animals. They got embedded हो रहे वो लोग, मतलब वो लोग embedded हो रहे हैं in permafrost of Arctic or alpine snow remains preserved in the actual state. एक्चुअल स्टेट में है, जिस स्टेट में थे उसी स्टेट में है. ओके, जैसे स्नो वगैरह में वो लोग डिकम्पोज नहीं हो पा रहे, तो उसी स्टेट में है. वुली मैनमॉथ, ये जो है वो मैनमॉथ है जो कि सिबेरिया में. अंबर और हार्डेंड रेजिन्स कंटेन preserved bodies of many insects and arthropods. ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप. सेकेंड टाइप है molds. These are the hardened
encasement formed in the outer part of organic remains. ये क्या है? hardened है. formed in the outer part of organic remains which later decayed leaving cavities. जो बाद में decay हो जाता है और जो cavities है उसे छोड़ देता है. okay? body part of plants or animals later decay. बाद में decay होगा, decompose होगा, but the impression still remain and becomes permanent. For example, footprints are formed in this manner. mold का best example है हमारा footprint. Then third is cast. There are 100 pieces of mineral matters. There are hardened pieces of mineral matters deposited in the cavities of mold. जो mineral matters है, बहुत सारे pieces होते हैं इस mineral matters के. ये मिनरल मैटर्स क्या करता है? डिपॉजिट करता है, अपने आप को डिपॉजिट कर रहा है. कहाँ पे? इन द कैविटीज़ ऑफ मोल्ड. जो ये मोल्ड है जिसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं, उसके कैविटीज़ में अपने आप को डिपॉजिट करता है. कौन? मिनरल मैटर. फोर्थ इज कंप्रेशन. कंप्रेशन इज व्हाट? इंटरनल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट बट अ थिन कार्बन फिल्म indicates the outline of external features. जो internal structure होता है वो पूरी तरीके से absent होता है, but a thin carbon film, एक पतली एकदम thin कार्बन की फिल्म होती है जो indicate कर रही है the outline of external features. external features की जो outline है उस पे वो इंडिकेट कर रहे हैं बाय अ कार्बन फिल्म. दिस इज़ द इमेज ऑफ एक्चुअल फॉसिल्स. जो हम लोग ने एक्चुअल रिमेन्स पढ़े थे कि पूरा का पूरा रिमेन हो रहा है यहाँ पे. ओके, सो दिस इज़ एक्चुअल फॉसिल. दिस इज़ मोल्ड एंड कास्ट. यहाँ पे इम्प्रेशन फॉर्म हो रहा है और इसके अंदर कैविटी में कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को ये जो मिनरल्स है वो आके फिट कर रहे हैं. अ मोल्ड फॉर्म्स व्हेन हार्ड पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर बरीड इन सेडिमेंट सच एज सैंड, स्लीट और क्ले, एंड द कास्ट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ अ मोल्ड, एंड द हार्ड पार्ट completely dissolve over time leaving behind a hollow area with the organism's shape. और जो कास्ट है वो क्या करता है? कास्ट फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ मोल्ड. वाटर विद डिजॉल्व मिनरल्स एंड सेडिमेंट फिल्स द मोल्ड एम्प्टी स्पेस. मिनरल्स एंड सेडिमेंट दैट आर लेफ्ट इन द मोल्ड मेक अ कास्ट. तो ये हमारा मोल्ड हो गया. दिस इज़ द कास्ट. लास्ट था इम्प्रेशन ऑफ फॉसिल्स. तो इस तरीके से ये अपना इम्प्रेशन पीछे छोड़ता है. सो दिस इज़ इम्प्रेशन फॉसिल्स. Now what we are going to study the significance of paleontology. What are the importance कि क्यों paleontology पढ़ते और paleontology पढ़ के what क्या फ़ायदे हैं, significance क्या है, importance क्या है paleontology की. So it is useful in reconstruction of phylogeny. phylogeny मतलब वापस से उसके बारे में पढ़ने के लिए इसे इसलिए ये यूज़फुल है. देन इट हेल्प्स इन स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. थर्ड इज इट प्रोवाइड्स रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. सेकेंड क्लियर हो गया. इट हेल्प्स इन स्टडिंग वेरियस फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल्स. थर्ड क्या? इट प्रोवाइड रिकॉर्ड ऑफ मिसिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फोर्थ इज इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ हैबिटेट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. क्लियर? पैलेंटोलॉजी प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एविडेंस. ये सारे एविडेंस के बारे में पैलेंटोलॉजी बताता है. फर्स्ट उसने कनेक्टिंग लिंक या फिर वी कैन से मिसिंग लिंक के बारे में बताया.
So what is connecting link or what is missing link? These are the fossil form, transitional or intermediate between two groups of organism. हम लोग ने इसके बारे में पहले पढ़ा है. These are the fossil form, transitional or intermediate between two groups of organism. It shows some characters to both the group. दोनों ग्रुप है. अगर सपोज ए ग्रुप है एंड बी ग्रुप है, ओके, रुको आई विल राइट इट अगेन. इफ देयर इज ए ग्रुप एंड बी ग्रुप, तो दोनों के जो कैरेक्टर्स है, इट शोज सम कैरेक्टर्स टू बोथ द ग्रुप. इंटरमीडिएट है, बीच का. Thus it indicates the evolutionary line. Simoria क्या है? Between amphibians and reptiles. For example, Archaeopteryx. What is Archaeopteryx? It's between reptiles and birds. ये है हमारा connecting link. So now connecting link का definition हम लोग ने पहले भी पढ़े हैं, right? यहाँ पे क्या दिया है कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म है. इंटरमीडिएट के फॉर्म में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस आर्केप्टेरिक्स. बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. देन ये है हमारा आर्केप्टेरिक्स. इमेज में दिख रहा है ना. ये क्या है, इसका पहले फुल नाम क्या है? आर्केओप्टेरिक्स लिथोग्राफिका. आर्केओप्टेरिक्स लिथोग्राफिका. It is fossilized crow-sized bird found from Jurassic rocks in Germany. It is known as missing link between reptiles and birds because it shows characters of both. ये क्या है? इट इज़ अ मिसिंग लिंक या फिर कनेक्टिंग लिंक, जो भी बोले. इट इज़ अ मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स बिकॉज इट शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ. यहाँ पे दिख रहा है ना, ये क्रो है ऊपर से बट नीचे से वो बर्ड है. इसकी बॉडी पे स्केल है, बिक है, टीथ है, क्लॉड डिजिट्स. क्लॉड कर रहा है वो, क्लॉनिंग के डिजिट्स है, मतलब क्रॉल कर सकता है. प्लस विंग्स है एंड ऑल्सो फेदर्स. तो ये क्या है? ये क्रो भी है एंड इट इज़ रेप्टाइल ऑल्सो, क्योंकि रेप्टाइल्स ही मोस्टली क्रॉल करते हैं. सो इट इज़ अ मिसिंग लिंक. इसका नाम क्या है? आर्केओप्टेरिक्स लिथोग्राफी. इट इज़ अ मिसिंग लिंक between reptiles and birds. Then अब इसके बारे में पढ़ना है. रेप्टालियन की कैरेक्टर्स क्या है? प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल, क्लॉज, स्केल ऑन द बॉडी, सिंगल हेडेड रिब्स. प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल, क्लॉज, स्केल्स ऑन द बॉडी. उस बर्ड में भी थे ये सब. सिंगल हेडेड रिब्स. Abdominal ribs are present which look like ribs of crocodile. Then jaws with homodont teeth. Sternum without nail. Bones are solid. Hind limbs had 4 clawed digits. Okay, तो यहाँ पे एक न्यू टर्म है homodont teeth एंड एक है without nail. homodont teeth क्या है? होमो मीन्स इट्स सेम, डेंट मीन्स टीथ. ओके, होमोडेंट. होमोडेंट होता है जो सारे टीथ उसके एक जैसे. जैसे अब ह्यूमंस में हेट्रोडेंट है, हमारे टीथ में कुछ चेंजेस है, कोई पॉइंटेड है, कोई टॉप से सर्कुलर है, तो वो हो गया हेट्रोडेंट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट शेप्स. बट होमोडेंट टीथ उनमें होता है जो कि ये रेप्टाइल्स है, इनमें होमोडेंट है. होमोडेंट मीन्स उनका जो शेप है टीथ का, वो सारे टीथ का एक ही शेप होगा. सो क्लियर विद द टर्म होमोडेंट.
फिर जो उनका स्टर्नम होता है विदाउट नील होता है, मतलब उनमें कोई नीलपना नहीं होता। नील मीन्स कि वो जो उनके जो फ्लाइंग मसल्स अटैच्ड है, तो वो जिस तरीके से बर्ड्स में अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं स्टर्नम विदाउट नील। ये हो गया हमारा रेप्टाइल कैरेक्टर्स। देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एवियन कैरेक्टर्स। एवियन कैरेक्टर्स क्या है? पहला है फेदरी एक्सोस्केलेटन, फिर है फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जॉर्स आर मॉडिफाइड इनटू बिग, फोर लिम मॉडिफाई कर रहे इनटू विंग्स, जॉज मॉडिफाई हो रहे इनटू बीक, स्कल बोन इज कम्प्लीटली फ्यूज्ड, पूरी तरीके से फ्यूज्ड हो जाते हैं। लार्ज राउंडेड cranium, cranium with large orbits and single condyle. Then limb bones are bird-like. Hind limbs with 4 toes. First toe is opposable. Thus, from the above study, it is very clear that birds evolved from reptile. Huxley justified this by calling birds as glorified reptiles. ये जो birds है वो evolve हुए from reptiles, क्योंकि जो avian characters हैं वो क्या है? feathery exoskeleton. Firstly, what is avian? Avian means होता है birds. Okay? तो अभी हम लोग ने पहले पढ़े किसका? रेप्टाइल का पढ़े कैरेक्टर्स. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट एवियन कैरेक्टर्स, दैट इज़ बर्ड्स. तो बर्ड्स के क्या कैरेक्टर्स है? फेदरी एक्सोस्केलेटन. उनका जो स्केलेटन है वो क्या होता है? फेदरी होता है. फोर लिम्स जो है वो मॉडिफाइड विदाउट विंग्स. जॉज आर मॉडिफाइड इनटू बिग. स्कल बोन जो है इज कम्प्लीटली फ्यूज्ड. लार्ज राउंडेड क्रेनियम. Cranium with large orbits and a single condyle. Limb bones are bird-like. Hind limbs with 4 toes. First toe is opposable. Thus, from the above study ये clear है कि birds are evolved from reptiles. और किसने इसको justify किया? Huxley ने justify किया this by calling birds as glorified reptiles. अब ये term avian characters और reptile characters clear हो गया. देन वी विल स्टडी सेकेंड पार्ट जो है मॉर्फोलॉजी. व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? दिस इज़ मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली कोई स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलेंगे. तो मॉर्फोलॉजी डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, वाइल एनाटॉमी डील्स विथ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी क्या करता है? इट डील्स विथ स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, और एनाटॉमी क्या डील करता है? विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से कौन डील कर रहा है? मॉर्फोलॉजी. एनाटॉमी किससे डील कर रहा है? विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर. फ्रॉम कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ये जो कंपैरेटिव स्टडी है मॉर्फोलॉजी की और एनाटॉमी की, ओके ये दोनों जो कंपैरेटिव स्टडी है, वी कैन अंडरस्टैंड द इवोल्यूशनरी एक्सपेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिबियल ऑर्गन्स. अब हम लोग आगे इनके बारे में पढ़ने वाले. मॉर्फोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड कर गया, होमोलोगस, एनालोगस एंड वेस्टिजियल. तो इन आगे पहले हम लोग होमोलोगस के बारे में पढ़ेंगे, then we are going to study about analogous, and then we are going to study about vestigial organs. तो पहले हम लोग होमोलोगस से स्टडी करते हैं. सिर्फ ब्रीफ है, देखते जाओ. इट्स वेरी इजी. होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन्स विच आर स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर but they perform different functions. For example, 4 limbs of vertebrates such as lizard, bird, bat,
then horse, whale and men. They are structurally similar. सबका फोरलिम सिमिलर है बट सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. मैन में अलग, लिजार्ड में अलग, बर्ड में अलग, बैट में अलग. All of them have humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals, phalanges in their forelimbs. ये सब क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सब बोन्स है, हाथ के बोन्स के नाम है. ह्यूमरस जो ऊपर वाला पार्ट है वो, फिर उसके जो नीचे, जो हमारी एल्बो इसके नीचे की बोन्स की बात करेंगे वो हो गया रेडियस, अल्ना. फिर आते हैं कार्पल, फिर आते हैं मेटाकार्पल, ये हमारे फिंगर्स, रिस्ट के बोन्स है. फिर उसके बाद लास्टली आते हैं फैलेंजेस इन दियर फोरलिम. फोरलिम ऑफ दिस वर्टिब्रास आर स्ट्रक्चरली सिमिलर बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन. इनमें हार्ट भी है, ब्रेन नहीं है, बट दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. इन प्लांट्स, थॉर्न ऑफ बोगैनविले and tendrils of cucurbita represent homology. The structural similarity between the homologous organs indicates that they have a common ancestry. इनसे क्या उनको इंडिकेट हुआ कि उनके जो एंसेस्टर्स थे वो कॉमन थे. Difference in homologous organs are example of divergent evolution or adaptive radiation. This is what we have studied about homologous organs. इसका एग्जाम्पल ये है, ये लिजार्ड का है, हॉर्स का है, वेल का है, बैट का है, बर्ड का है, देन मैन का है. यहाँ पे देखो बोन्स के नाम दिए हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस. ये हो गया हमारा ए. अगर टेंड्रिल्स और प्लांट में बात करेंगे तो ये बोगेनविले के बारे में हम पढ़े. उसके बाद कुकुरबिटा पढ़े. तो ये स्टेम्प दोनों में है, टेंड्रिल्स है, थॉर्न्स है, लीव्स है, वी हैव एवरीथिंग. तो ये हो गया हमारा होमोलोगस ऑर्गन. थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनालॉगस ऑर्गन. एनालॉगस ऑर्गन आर दोज विच आर स्ट्रक्चरली डिसिमिलर बट फंक्शनली सिमिलर. स्ट्रक्चरली सेम नहीं है बट फंक्शन सेम है. दिस ऑर्गन्स हैव एक्सटर्नल सुपरफिशियल सिमिलैरिटी due to similar functions but they are different anatomically. इनका एग्जाम्पल है wings of butterfly, insect and of birds look superficially alike. दोनों की wings alike है but they are no anatomical similar structures though they perform similar function. insect के wing, bird के wing दोनों सेम है, function सेम करते हैं but दिखने में सेम नहीं है. And then other examples are analogous organs का eye of an octopus, then end of mammals. Octopus की eye भी same है और mammals की आँख भी same है, but structurally they are not same. Their functions are same. They differ in their retinal position, structure of lens and origin of different eye part. Then second is the flipper of penguins and dolphins. Then sweet potato and potato that are store food in form of starch. फिर analogous organ जो है it deals to convergent evolution. कौन सा evolution हो रहा है? Convergent evolution. And what is convergent evolution? That is different organisms show same superficial structural similarity due to similar function or habitat. But these organs do not help to trace the common ancestors. इनके ancestors common नहीं है, इनका structure common है, इनका function common है, but the ancestors are different. Thus, analogous organs do not have significant role in evolution. Clear? ये हो गया हमारा analogous organ. जैसे कि एग्जाम्पल दिया है इंसेक्ट और बर्ड का. बर्ड में अल्ना है, फेदर्स है, ह्यूमरस है, रेडियस है. बर्ड इंसेक्ट में क्या है? हिंड विंग और फोर विंग. देन लास्ट टाइप है हमारा, थर्ड टाइप है वेस्टिजियल ऑर्गन्स या फिर वी कैन से रूडिमेंट्री ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर imperfectly developed and non-functional degenerate structures
which are functional in some related and other animals or in ancestors. ये क्या है, imperfectly developed और नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है जो कि फंक्शनल होता है इन सम रिलेटेड एंड अदर एनिमल्स और इन एंसेस्टर्स. द वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. ये ऑर्गन्स रिक्वायर्ड नहीं है ऑर्गेनिज्म को, but indicate the relationship with those organisms where these organs are fully developed. For example, human beings show some vestigial organs like presence of vestigial nictitating membrane. Nictitating membranes क्या है, ये जो हमारे आईज के अराउंड जो वाइट पार्ट है वो है निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन्स. उनका काम क्या है, मॉइस्ट रखना. ओके, बट ये लोग कुछ ज़्यादा फंक्शन शो नहीं करते. देन द प्रेजेंस ऑफ विजडम टीथ, थर्ड मोलार्स, कॉक्सी, टेल बोन. इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड इन मैन सिंस द टेल इज़ ऑफ नो यूज ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर. फिर एक है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड द सीकम. इट इज़ फंक्शनल इन हर्बिवरस एनिमल्स for digestion of cellulose. In men, due to eating of cooked food, it has lost its function. Presence of this vestigial organs provide evidence that man has evolved descended from simple primates. Clear हो गया. Then इसके example है Plica semilunaris. Plica semilunaris यह है थर्ड मोलार टीथ इसको बोलते हैं. देन ये हमारा कॉक्सी सैक्रम के नीचे एक छोटा सा पार्ट होता है फ्यूज टेल वर्टिब्रे में. फिर ये है सेमीफॉर्म वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. ये सीकम कोलॉन स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है. ये हो गया हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन्स. तो अब इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स. सो थैंक यू एंड वॉच ऑल द वीडियोज़.